So good afternoon, everyone. I am Sahil Khatri from the Automobile Department, Parallel University. I am glad to introduce our today's expert, Mr. Vijay Khatrani sir, who is associated with designing since last 6 years and having an CAT center in Vadodara. So by not wasting much time, I am directly handing this session to our today's expert, Vijay sir. So, Vijay sir, Hello, good afternoon, everyone. Today we are going to see about the product design cycle. Means what? You know that. Sir, next slide, please. Hello, hello, hello. yes sir, Yes, you you are are audible, sir. audible. Yes sir, you are audible. Yeah, just can you show the slide, please? Yes. Yeah, hello, hello. Yes sir, you are audible. Please Uh, continue. yeah, please. Slide mode में चाहिए ना? Yeah. So today's session is on a product design cycle. That means once you are thinking to design any product, here I just give you the some example, but you can consider many of whatever you want to design. There are some stages which you need to follow first, right? So according to that, first will be like a, if you thinking that I want to design a product, but from where you will start, right? There should be some starting phase and there should be a ending phase to bring that product into the market from your visualization, right? So today we are going to see like what are the stages in the product design cycle, and to follow that stages which software are used specifically for that stage, right? So here I see, you can see that there are a different product, and if you consider that just 10-year back or 20-year back, what was the design of that product and what is the actual design nowadays. So you can see there are many changes. It's not just look at changes in aesthetic view, there are some changes in functional view, operational view. So right, so today also we will see like what type of tools used for to design that product. I mean to say that software, specifically for the software, right? Okay, sir, next slide, please. Yeah. So here is to just give you the idea about the what is the product design cycle. Product design involves a broad approach to the designing and making of innovative or new product. That means innovative means there are totally new different product, right? You are going to develop a total innovative or new product. That means suppose there is a maybe existing product and you want to design a new product, right? Second thing is product design is concerned primarily with relationship between product system and those who use them. That means product which is you are going to develop, system the organization who are producing it, and the end user. There is a correlation between these three things, right? So for example, if you want to design, now we'll go on the product design cycle. So for example, if you want to design anything, like if you are belongs to automobile things, just consider the one parts, any of one parts, or one bike or one car, whatever you want to just predict it. Suppose if you want to design it, so just think that what will be the first stage, how will you start the design?
you will not directly start to manufacturing, right? There will be some stages you must need to follow it. So the first stage is, if you can guess, because here is not here is difficult to communicate two ways, so just think it, what will be the first stage, right? Yeah, so the first stage will be customer requirement. If you guess customer requirement, then it's perfect. Sir, can you just move on second slide? Next one. Yeah, so consider this is my product, I want to start it, but for before the starting you need a requirement, right? Which is the customer requirement. And customer may be the environment, human, or maybe one organization. They will give you the inputs like, I want such kind of product, or I want such kind of facility in that product, or maybe environment have some requirement like this should be meet such things, right? So sir, can you slide next one please? So yeah, so the list of customer, for example, आज कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे बाइक में लुक चाहिए, रेंज चाहिए, कि फॉर एग्जांपल इट शुड गिव अ 100 kilometer range of if it is electrical vehicle, और सपोज इफ इट इज पेट्रोल देन कंसीडर किया जाता है एवरेज, राइट? कि ये इतने किलोमीटर की एवरेज देनी चाहिए पर लीटर। या स्पोर्ट्स बाइक में लुक्स चाहिए, स्पीड चाहिए, हाई स्पीड, हाई टॉर्क, राइट? सो दिस आर द रिक्वायरमेंट जो आपके पास आएगी, मे बी वो नॉन टेक्निकल होगी या टेक्निकल होगी, राइट? और द सेकंड थिंग्स, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है ना, उसको हम क्या करते हैं, एज ए इंजीनियर विल फील इट, कि या तो ये फॉर एग्जांपल कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि मुझे रेंज चाहिए या तो एवरेज चाहिए 40 किलोमीटर पर लीटर, राइट? सो आप वहां पे आपको भी एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर यू नो कि अगर मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर चाहिए तो क्या क्या पैरामीटर से, राइट? अगर वो बोल रहा है कि मुझे कॉस्टिंग कम चाहिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर है विच इज डायरेक्टली इफेक्ट टू द कॉस्ट और स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मुझे इतनी स्पीड चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी जो इंजन है वो हाई सीसी होना चाहिए, एरोडायनेमिक्स आपका सेफ होना चाहिए, देन लाइट वेट बॉडी होनी चाहिए। तो फॉर टू डू लाइट वेट यू मस्ट नो हैव व्हाट आर द पैरामीटर, कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि जिससे लाइट वेट हो बाइक का, स्टेबिलिटी, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ फील्ड आई विल जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू डिजाइन अ वन स्वेटर, या आप कुछ स्वेटर नया बनाना चाहते हो, राइट? डेफिनेटली यू विल सी इन द एस्थेटिक व्यू। देन सेकंड थिंग्स, आप फॉर एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो कि रीजन कश्मीर के लिए, तो डेफिनेटली देयर विल बी अनदर रिक्वायरमेंट, राइट? अगर आप बनाना चाहो वेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल मिडल रीजन, तो वहां पे जो टेम्परेचर कम भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं होता, तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से बनाओगे। अगर आप साउथ के लिए बना रहे हो जहाँ पे कोल्ड वेदर है ही नहीं, उतना गर्मी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा या डिजाइन होगी वो अप्रोच डिफरेंट रहेगा। सो सो मैं जस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू डिजाइन एनी प्रोडक्ट, जस्ट फर्स्ट स्टेज इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट यू मस्ट हैव टू डिजाइन द प्रोडक्ट। इवन इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो just try to gather the requirements. What are the requirements? Identify the all kind of requirements, then try to give a categorize. Categorize means maximum, minimum, VCs, right? And फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मिनिमम। सो ये इससे जो कोई भी एक रिक्वायरमेंट है, इट शुड नॉट बी गो बियॉन्ड मैक्सिमम ऑफ दैट वैल्यू एंड शुड नॉट गो बियॉन्ड minimum value. If wishes, if customer says I want wish, if it is possible it's okay, I will be happy, otherwise it will be not affect my product. So अगर पॉसिबल है तो ही आप वो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, राइट? एंड डी यानी डिमांड, यानी कि कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक में दोनों
फ्रंट और बैक रियर में मुझे डिस्क ब्रेक चाहिए, देन यू हैव टू पुट इट। अगर आप नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली वो बाय नहीं करेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा आपको। सो सेम थिंग, आप अगर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू कंसीडर, take the list or requirement from the industry, from the project, from the environment, from anywhere, then categorize it, give the demand, wish, right, or m, then give your value, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट करोगे, राइट। सो ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज पे हम फोकस कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई, मे बी वो टेक्निकल भी होगी और नॉन टेक्निकल भी होगी। अगर आपने कोई रोड पे सर्वे किया है तो जो किसी भी जनरल पब्लिक को पूछा, he will not give you the technical details, right? He will just say that मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, या तो ये कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो मैं ये डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, राइट। सो यू विल हैव द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट विच मे बी इन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नाउ वो किसके पास आती है? इंजीनियर लाइक अस। हम क्या करते हैं, उसका जो भी नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं हम टेक्निकल में, एंड देन हम हमारा कंसेप्ट बनाते हैं कि प्रोडक्ट ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा दिखेगा, इसका डायमेंशन ऐसा रहेगा, इतने साइज का रहेगा, राइट। सो द सेकंड स्टेज इज कंसेप्चुअल डिजाइन, यानी आप जो आपके खुद पे एक एज ए इंजीनियर आप एक कंसेप्ट बनाते हो, राइट। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो सेकंड वन इज कंसेप्चुअल डिजाइन। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, एज आई सेड, डायमेंशन डिसाइड करते हो, व्यू डिसाइड करते हो कि फर्स्ट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू कैसा दिखेगा, जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। मे बी आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं आई थी, डायरेक्टली डिजाइन थी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने किया है, राइट। उसमें आपने क्या किया था कि टॉप व्यू, बॉटम व्यू, सब व्यू दिए थे, डायमेंशन दिए, तो वो ऑलरेडी किसी से के थ्रू ड्राइंग आया था। बट अगर किसी ने रिक्वायरमेंट दी है, आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो या किसी ने रिक्वायरमेंट दी, तो आप उसको आइडिया लगाओगे कि साइड व्यू से ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, बॉटम व्यू से ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू से ऐसा दिखेगा, इसका डायमेंशन ऐसा रहेगा। अगर कोई हिडन है तो डॉटेड लाइन से आप करोगे कि हाँ बैक साइड जो हिडन पार्ट है वो कैसा दिखेगा, राइट। सो ऑलरेडी आप कर चुके हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बट इट हैज सम लिमिटेशन। व्हाट वाज द लिमिटेशन? फर्स्ट, कि अब जो भी ड्राइंग बना रहे थे वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बनाने के लिए बहुत टाइम जा रहा था, राइट। सेकंड थिंग्स, कि अगर सेम ड्राइंग इफ आई गिव टू 5 people, द एक्यूरेसी विल बी डिफरेंट, राइट। तीन सब पांचों पांच लोगों का एक्यूरेसी सेम नहीं रहेगा, राइट। देन यू नीड मटेरियल फॉर दैट, पेंसिल है, जो भी इक्विपमेंट है वो चाहिए थे आपको। सेकंड, थर्ड वन इज कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, देन अगर उसको आपको ड्राइंग भेजना है तो आपको अगेन डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन भी डिफिकल्ट है, राइट। नेक्स्ट, कि जो पेपर आप जो यूज कर रहे हो, ड्राइंग शीट, उसकी कुछ लाइफ है, राइट। लॉन्ग लाइफ तक वो नहीं होगा क्योंकि पेपर वो मे भी फट जाए, टीयर ऑफ हो जाएगा या उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है, राइट। सो ये जो भी लिमिटेशन थी, राइट, उसको ओवरकम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो ऑटोकैड। अगर आपको ड्राफ्टिंग थिंग करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर जो यूज होता है ऑटोकैड होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। या सो ऑटोकैड, सो बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उस अगर मुझे नॉर्मल ड्राइंग शीट में बनाने के लिए 5 आवर्स या 1 आवर्स लगता था, तो मे बी सेम ड्राइंग में ऑटोकैड में 10 मिनट्स में या 10 डेज लग रहे हो या 10 आवर्स लग रहे हैं तो उसको 1 आवर में भी कर सकता हूँ। डिपेंड कि मेरी स्किल और नॉलेज कितना है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, या मेरी कमांड कितनी है वो सॉफ्टवेयर पे, राइट। सेकंड, एज आई सेड कि उसमें डुप्लीकेट आपको बनाना था, देन ट्रांसपोर्ट भी डिफिकल्ट था। यहाँ पे आप इजीली किसी को भी बाय मेल थ्रू भेज सकते हो और वो जो लाइफ और जो भी फाइल है वो लॉन्ग लाइफ सेव हो सकती है। एक्यूरेसी, उसमें एज आई सेड कि इफ आई गिव द ड्राइंग, सेम ड्राइंग टू 5 people, maybe the accuracy will be different, but in here AutoCAD, if you put right command, for example if you want to make a circle of 10 mm diameter, if you type 10, then there will be no accuracy problem। सबका जो भी सर्कल है वो 10 रेडियस का ही बनेगा। दैट मीन्स मैन्युअली आप में एक्यूरेसी डिफरेंस हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट। सो जो भी, हाँ इसमें आप 2D ड्राफ्टिंग थिंग्स बना सकते हो विच इज बेस्ट फॉर
AutoCAD इज बेस्ट फॉर द ड्राफ्टिंग थिंग्स। अगर आपको जो भी कंसेप्ट बना है उसके व्यूज देने हैं एंड देन उसके डायमेंशन देना है तो आप AutoCAD यूज कर सकते हो। AutoCAD इज द बेस्ट टूल फॉर द ड्राफ्टिंग थिंग्स। नाउ सो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या था? कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनानी है तो फर्स्ट स्टेज इज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेकंड कंसेप्चुअल डिजाइन, यानी कि जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आप उसका कंसेप्ट बनाते हो, उसको व्यूज बनाते हो एंड देन आप उसको डायमेंशन देते हो कि प्रोडक्ट का डायमेंशन कितना होगा। नाउ बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है और कौन से सॉफ्टवेयर जो है उसमें यूज होते हैं। सो यहाँ पे कंसेप्चुअल डिजाइन है। अब लेट्स एज्यूम कि आप यू आर डूइंग जॉब इन कोई मल्टीनेशनल कंपनी या ओईएम में आप कोई जॉब कर रहे हो। आप डायरेक्टली या तो कस्टमर के साथ डील कर रहे हो या तो वाया आपके बॉस के थ्रू कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। सो फ्रॉम द कस्टमर आपको डायरेक्टली रिक्वायरमेंट आ रही है या तो आपके बॉस के थ्रू रिक्वायरमेंट आई है। नाउ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप कोई एक कंसेप्ट बनाते हो कि मुझे प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऐसा ऐसा उसके लुक होगा, व्यूज होंगे एंड इसके इतने डायमेंशन हो गए। नाउ वो कहाँ पे है? आपके दिमाग में, राइट? या आप एज ए सेट एज ए कंसेप्चुअल व्यू आप उसको ड्राइंग शीट में कन्वर्ट करके या ऑटोकैड में या मैन्युअली बना के आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपका बॉस या आपका क्लाइंट टेक्निकल बंदा है, ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग्स। बट अगर वो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम कि आपके कोई इंजन है, इंजन का व्यूज आपने दिए है, टॉप व्यू बॉटम व्यू, और उसको एज्यूम करना बोल रहे हो कि रियल इंजन आप एज्यूम करो, नहीं कर पाएगा वो, राइट? इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ही डोंट नो द टेक्निकलिटी ऑफ द ड्राइंग थिंग्स। ओके, सो बट आपको उसको बताना है कि हाँ प्रोडक्ट बनने के बाद मेरा ऐसा दिखेगा। बट अगर वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो हाउ कैन ही गिव यू द ऑर्डर कि नहीं आपने जो बनाया है वो सही है, आप इतनी क्वांटिटी या इतने आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, नहीं, राइट? सो यू नीड समथिंग टू रिप्रेजेंट दैट। व्हाट आपके दिमाग में वो आपको मालूम है बट सामने वालों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि आफ्टर बनने के बाद वो हाउ इट विल बी लुक लाइक। ओके, सो you will have a two option, either you will go for the prototyping or maybe for the software। फर्स्ट हम जा रहे हैं प्रोटोटाइपिंग पे, उसके कुछ लिमिटेशन है, दैट्स व्हाई नाउअडेज वी आर और कंपनी गोइंग फॉर द सॉफ्टवेयर। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना रहे हो, कंसीडर वो 10 डेज ले रहा है बनने के लिए, देन आप उसके पास जा रहे हो और क्लाइंट को या आपके बॉस को दिखा रहे हो कि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट मैंने कंसेप्ट बनाया है जिसका ये प्रोटोटाइप ये है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पसंद आ जाएगा, वो बोलेगा नाउ ओके आपने 10 दिन मेहनत की है, नाउ इट्स ओके गो फर्दर, नहीं, राइट? उसको पसंद नहीं आएगा, ही विल डायरेक्टली से नो आई डोंट लाइक इट और आई नीड सम चेंजेस। ओके, सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, आप फिर से जाओगे, करेक्शन इज पॉसिबल यू विल मेक करेक्शन, अदरवाइज अगेन यू विल हैव टू मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट। सो अगेन आप स्टार्ट से बना रहे हो, देन अगेन जा रहे हो आप उनके क्लाइंट या तो बॉस के पास, देन बोल रहे हो कि अगेन आई डिड मॉडिफिकेशन, बट अगेन वो मना कर रहा है कि नहीं फिर अभी भी मुझे पसंद नहीं है, राइट? सो कब तक? जब तक आपका क्लाइंट बोल नहीं रहा है या बॉस नहीं बोल रहा है नाउ इट्स परफेक्ट, तब तक आपको उसको रीप्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा। बट अगेन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 10 डेज ले रहा है और 10 अटेम्प्ट के बाद वो बोल रहा है कि नाउ इट्स परफेक्ट, मुझे पसंद है, तो जस्ट थिंक दैट आपके कितने दिन गए, राइट? एक अटेम्प्ट को 10 डेज लग रहे थे, वो 10 अटेम्प्ट के बाद बोल रहा है कि नाउ इट्स परफेक्ट, तो जस्ट कंसीडर कितने दिन गए, उसके लिए कितना एफर्ट गया आपका, प्लस मटेरियल वेस्टेज कितना हुआ। तो अल्टीमेटली मटेरियल कॉस्ट है वो आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि आर-एन-डी में सबसे ज्यादा, इफ यू नो, आर-एन-डी में सबसे ज्यादा एक्सपांड होता है, मनी खर्च होते हैं, राइट? सो नाउ 10 डेज के बाद वो बोल रहा है 10 अटेम्प्ट के बाद इट्स परफेक्ट, बट इतना टाइम गया, मनी वेस्टेज हुआ, राइट? सो ये जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जो है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, राइट? सर कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? या वन मोर, या सो दिस आर द सॉफ्टवेयर, राइट?
Creo है, SolidWorks, NXCAD, CATIA. There are other software also, Fusion 360, Inventor, Solid, Solid Edge, number of software. But here I'm give you the example of some popular software, right? Which is more demanding in the market. Okay. So इसमें क्या होगा? Again, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10 डेज लग रहे थे, तो मे बी इसमें 10 आवर्स या 1 आवर्स में भी आप बना सकते हो, या 1 डे में, राइट? सेकंड, कि जो प्रोडक्ट आपको बनने के बाद दिखने वाला था, वो प्रोडक्ट आपको बनने के पहले वर्चुअली आप दिखा सकते हो किसी को भी. Either you can show it to your client or you can show it to your boss also, right? Or you can just represent your idea. Now बॉस या क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये चीजें पसंद नहीं आई, राइट? या ये चीजें हैं जो, फॉर एग्जांपल किसी का डायमीटर 10 मीटर, ही वांट्स टू मेक इट 5 मीटर, राइट? So directly on the spot you can do the changes, right? Or you can directly send that file or 3D model to directly to them, right? So that means कहने का मतलब है कि जो आपका टाइम लग रहा था वो आप डायरेक्टली मिनिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. और मे बी फॉर एग्जांपल आपको जो बाइक दिख रहा है बीच में, सेम वैसा ही अगर वो एक्चुअल है तो सेम वर्चुअली भी जो भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ना, आप उससे बना सकते हो. इसमें भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल किसी में भी स्केच, ड्राफ्टिंग थिंग्स जो आपने ऑटोकैड में किया वो तो कर सकते हो आप. देन पार्ट मॉडलिंग, सी कोई भी पार्ट बाइक है या कोई भी अलग मशीनरी है, इट्स नॉट अ सिंगल पार्ट, राइट? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, वी असेंबल दैट पार्ट. अगर उसको असेंबल करते हैं तो वो एक सिस्टम बनता है, अगर वो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तब जाके मे बी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है. फॉर एग्जांपल बाइक्स या कार है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, जैसे ट्रांसमिशन है, इंजन पावर सिस्टम है, राइट? तो उसके डिफरेंट ब्रेकिंग सिस्टम है. तो अगर ब्रेकिंग सिस्टम वो सब एक हम ज्वाइन कर रहे हैं तब जाके एक व्हीकल बनता है. बट वो जो सिस्टम है उसके भी इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे इंजन है तो इंजन में पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, ब्लॉक है, राइट? वाल्व है, टेपेट कवर है, जो भी सब मिला के हम उसको असेंबल कर रहे हैं. पहले तो वो पार्ट बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के. तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में आप इंडिविजुअल पार्ट बना सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इंजन बना चाहते हो तो इंडिविजुअल उनके जो भी पार्ट है जितने भी आप इंडिविजुअल बनाओगे. सो इसमें भी ऑप्शन है, ड्राफ्टिंग कर सकते हो. देन यू कैन डू द पार्ट मॉडलिंग. नाउ द सेकंड इज असेंबली, क्योंकि सी इंजन है वो इट्स असेंबली ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, राइट? तो सेम थिंग सॉफ्टवेयर में भी आप इंडिविजुअल पार्ट बनाओ, देन यू कैन डू द असेंबली ऑफ दैट सिस्टम, राइट? सब असेंबली बनाओ एंड देन अगेन असेंबली ऑफ असेंबली दैट सिस्टम, यानी कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी जो भी आपका 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, राइट? देन कुछ चीजें पार्ट में होती है, कुछ चीज में सीट मेटल होती है. फॉर एग्जांपल जो भी सीट से बना रहता है, राइट? अभी तो मेटल बोर्ड, प्लास्टिक बॉडी आ गए, वो पहले मेटल सीट में से बनते थे, राइट? इफ यू नो दैट आउटर बॉडी, तो वो सीट मेटल के भी अलग फीचर रहता है, स्टैंपिंग जो रहता है, एम्बोजिंग रहता है, वो सब भी फीचर आता है. तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल रहता है सीट मेटलिंग. देन सरफेसिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके देखा होगा कि नाउ डेज मोस्टली कार एंड एरोडायनेमिकली शेप ज्यादा हो रहा है, कर्वेचर. तो कुछ उस तरह के शेप है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको नेम नहीं दे सकते, राइट? तो वो जो भी यूज होता है वो सरफेसिंग में होता है कि जिसका कर्वेचर स्मूथ हो, एरोडायनेमिकली हो, और जो भी आप में दिमाग में आए वैसा. तो फॉर एग्जाम्पल केटिया है जो वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि उसका सरफेसिंग फीचर्स बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली अदर सॉफ्टवेयर. सो आप देख रहे होगे कि ऑटोमोबाइल, राइट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या स्पोर्ट्स कार जो रहते हैं उसमें एरोडायनेमिक शेप ज्यादा रहते हैं, तो उस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है केटिया सॉफ्टवेयर. सो दिस आर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. नाउ आपने क्लाइंट या आपके बॉस को बताया कि सर दिस वाज द प्रोडक्ट कंसेप्ट है जो आपने मुझे रिक्वायरमेंट दी तो, और उसको पसंद भी आ गया था, राइट? विच बोल रहा है कि नाउ इट्स एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, परफेक्ट, राइट? सो विल यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग? कि अगर उन्होंने बोला कि दिस इज द परफेक्ट, विल यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग? इफ यू गेस यस,
देन इट्स टोटली रॉन्ग, इट शुड बी नो। हम नहीं कर सकते, क्यों? टिल दिस स्टेज, यानी कि थर्ड स्टेज, फर्स्ट था कस्टमर रिक्वायरमेंट, सेकंड कंसेप्चुअल डिजाइन एंड थर्ड modeling, 3D modeling, right? So based on 3D modeling, I can't go for the manufacturing because just till this stage I only know about the फिटिंग्स, वो प्रॉपर फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका लुक्स क्या है, राइट, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और या कोई असेंबल कर रहे हैं तो कोई प्रॉपर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। बट वी डोंट नो अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक चेयर बना रहा हूँ, चेयर लुक वाइज बहुत अच्छी है, वो प्लास्टिक से भी बनाऊंगा अच्छी दिखेगी, थर्मोकोल से भी बनाऊंगा अच्छी दिखेगी, वुडन से भी बनाऊंगा या मेटल से भी बनाऊंगा, हर मटेरियल में वो अच्छी दिखेगी। बट लेट्स एज्यूम कि अगर थर्मोकोल से बना है और उस पर कोई बंदा बैठा तो टूट जाएगी, राइट। सो maybe that product can meet your aesthetic point of view requirement but not performance point of view requirement, right? So अगर आपका performance point of view product नहीं है तो एक बार परचेस करेगा बाय सी द लुक्स, बट वो नेक्स्ट टाइम परचेस नहीं करेगा आपकी प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं हो रहा है। सो to ensure the performance, what stage you will have or what you will do in that case, right? You will have a two option. Either you will go for the prototyping or virtual analysis, or you sorry physically analysis, or you can go for the virtual analysis. फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकली। सो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, राइट, अब उसको क्या करोगे, जो भी वर्क बेंच रहता है फॉर एग्जांपल उस पे आप एक्चुअल अप्लाई करोगे, प्रोटोटाइप बनाया आपने, देन आप कोई एनवायरमेंट में लेके जाओगे, वहां पे एक्चुअल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे। बाउंड्री कंडीशन इन टर्म्स ऑफ उस पे लोड जहां पे भी अप्लाई हो रहा है आप लोड उतना अप्लाई करोगे, जहां पे भी वो स्टेडी है यानी कि आपका फ्लोर है वहां से फिक्स है तो आप वहां पे उसको फिक्स करोगे, फिर उसका फोर्स उतना अप्लाई करोगे या इम्पैक्ट उतना दोगे। लेट्स से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रोडक्ट टूट गया, आप क्या करोगे? you will have only two option, either you will change the design or you will change the material, right? Only two option you will have, उन दोनों में से आपको दो चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट या रिक्वायरमेंट ऐसी बोल रही है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है वो 5 mm है, राइट, 5 mm से वो बेंड हो रहा है, राइट, तो मुझे मेरे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? मटेरियल, क्योंकि मैं 5 mm से, आपको भी मालूम है, इफ आई विल मेक 6 mm ऑफ दैट प्रोडक्ट थिकनेस डेफिनेटली माय परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज, बट माय रिक्वायरमेंट सेज दैट आई कांट गो बियॉन्ड 5 mm। सो इन दैट केस यू विल चेंज द मटेरियल, कि जो वो मटेरियल ऐसा आप सिलेक्ट करोगे कि मे बी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, बैंडिंग स्ट्रेंथ या जो भी स्ट्रेंथ आप जिस तरह का फोर्स आ रहा है, राइट, मे बी वो मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 mm में भी हो जाता है। दूसरा जो मटेरियल था वो बेंड हो रहा है, बट दूसरी नेक्स्ट मटेरियल की स्ट्रेंथ उतनी है कि वो 3 mm में भी आपकी फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट, तो दैट मीन्स यू चेंज द मटेरियल। अगर कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि 3 mm वाले में ओके इट्स हो रहा है बट उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, वो मैं अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड इट, सो व्हाट ऑप्शन यू विल हैव? you will go for the design, you will change the design of that material or product, right? So अगर कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि इट्स ओके आप डिजाइन चेंज करो या मटेरियल चेंज करो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सो आप क्या करोगे? इन दैट केस यू विल सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल वे, कि जो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, राइट। नाउ अगेन आपने डिजाइन चेंज किया या तो मटेरियल चेंज किया, देन आप प्रोटोटाइप बना रहे हो जिसको 10 डेज लगे थे, फिर से उस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, फिर भी वो टूट रहा है या तो बेंड हो रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर अगेन आप क्या करोगे? मटेरियल चेंज करोगे या उसकी डिजाइन चेंज करोगे, देन प्रोटोटाइप बनाओगे वो जो भी सिलेक्ट किया। कब तक करोगे? जब तक आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। अगेन 10 अटेम्प्ट के बाद हो रही है तो जस्ट सोचो 10 अटेम्प्ट उस पे गए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हुआ था, फिर दूसरे 10 अटेम्प्ट करने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो अगेन उसका कितना टाइम जा रहा है, राइट, मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, राइट। सो ये जो चीजें है उसको ओवरकम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो है एनालिसिस सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आपके पास कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में
मॉडल बनाया है आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, सॉरी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में। देन आप उसको वर्चुअली उस पे बाउंड्री कंडीशन दे सकते हो। यू कैन गिव द बाउंड्री कंडीशन। फॉर एग्जांपल वहां पे एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है उसको 45 डिग्री पे 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो यू कैन ऑल्सो गिव सेम हियर कि 45 एंगल पे 100 न्यूटन्स का अप्लाई दे रहे हो। वो बॉटम से फिक्स है तो आप यहाँ के बॉटम से फिक्स कर सकते हो। उसका मटेरियल वहां पे फॉर एग्जांपल आपने यूज किया है स्टील, सो ऑल्सो यू कैन गिव द मटेरियल ओवर हियर। और इवन स्टील में भी यू नो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड्स रहते हो, तो यू कैन चेंज द ग्रेड, ऑल्सो यू कैन चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल किसी की स्ट्रेंथ 100 न्यूटन मीटर है या किसी के डक्टिलिटी ज्यादा है, तो एवरीथिंग यू कैन गिव हियर। थर्मल कंडक्टिविटी वो मटेरियल की अच्छी है तो ऑल्सो यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपका जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स है वो यू कैन गिव द एक्चुअलिटी इन वर्चुअल पैरामीटर, राइट। सो आपको रिजल्ट जो भी मिलेगा वो ऑलमोस्ट और नियर अबाउट जो भी आपका प्रोटोटाइप है उसके हिसाब से मिलेगा। सो बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल सी, अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि उसके पीछे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये प्रैक्टिकल देखना है कि वो है कि नहीं पॉसिबल, या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। बट पैसा, फॉरगेट अबाउट पैसा, फॉरगेट अबाउट टाइम, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स कि आप प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं और नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्पेस शटल, अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे स्पेस शटल का यहाँ पे टेस्टिंग करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये लेयर टू ये लेयर ये इतने फ्रिक्शन से इतने स्पीड पे जाएगा, इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन इतना उस पर हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हीट से मेरा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सरफेस है वो फायर नहीं होना चाहिए। अब आप उसको प्रैक्टिकली, वो बोल रहा है कि फॉरगेट अबाउट मनी, फॉरगेट अबाउट टाइम, बट मुझे ये प्रैक्टिकलिटी देखना है, विल यू डू दैट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, यू कांट क्रिएट द एनवायरमेंट राइट हियर। सेकंड, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कि अगर यू नो दैट इट इज हैजार्डस, वो बोल रहा है कि जो रिएक्टर में है कुछ डिफॉल्ट आ रहा है या उसमें ब्रेकेज हो रहा है, देन वो कैसा रिएक्ट कर रहा है मुझे देखना है। नहीं कर सकते हो, यो ह्यूमन, वो कर सकते हो बट वो ह्यूमन हैजार्डस है, तो आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते उसको, राइट। सो ये सब चीजों के लिए सॉफ्टवेयर, ये जो है ना एनालिसिस सॉफ्टवेयर, वो इंट्रोड्यूस करे गए थे कि प्रैक्टिकलिटी भी पॉसिबल नहीं है बट वो करना जरूरी है। तो ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर बनाए गए थे, और उसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो कि अंतरिक्ष में या जो भी डाटा है, राइट, वो कितने एक्यूरेसी वो दे रहा है, या उसकी एनालिसिस जो भी आती है वो कितना एक्चुअल दे रहा है वो। उसकी वजह से अभी आप देख रहे हो कि इतने मिशन या इतने टेक्नोलॉजी पॉसिबल है स्पेस और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में, राइट। सो वो डाटा इतने एक्यूरेट थे और वो इतने थे, तो नाउअडेज कॉमर्शियल प्रोडक्ट में भी वो इंट्रोड्यूस हो गए। फॉर एग्जांपल किसी को भी एक सुई भी बनाना है, वो बंदा पहले एनालिसिस करके देखेगा। इवन यू कांट बिलीव कि मेडिकल लाइन में भी उतना यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे एक टैबलेट डिजाइन करना है, राइट, जो एज्यूम करते हैं हम, या फीवर का हो या जो भी हो, वो फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल में है, तो उसमें आपको भी मालूम है कैप्सूल ओपन करते हैं तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, राइट। मुझे वो जस्ट डिजाइन, ये डेफिनेटली इट्स आउट ऑफ फील्ड, बट टू गिव द मोर एक्यूरेसी कि आपको एटलीस्ट मालूम पड़े कि सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज होता है, राइट। सो आपको भी मालूम है एज ए मैन्युफैक्चरर कि अगर कोई बंदा उसको कैप्सूल को कंज्यूम करेगा, मुंह से लेके जहां पे भी आपका डाइजेशन सिस्टम है वहां पे जाने के लिए उतना टाइम लग रहा है, या तो मुझे मालूम है कि अगर ये पानी के टच में आएगा तो फर्स्ट जो मेरा लेयर है वो डिजोल्व होगा, देन वो जो इंटर एक्चुअल मेडिसिन है वो इफेक्ट करेगी, राइट। बट आपको मालूम भी नहीं है कि वो स्वेल करते हैं तो कितना टाइम लेता है माउथ से लेके वहां पे पहुंचने के लिए, राइट। उसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर वो हॉरिजॉन्टली जाता है तो टाइम लग रहा है, अगर वर्टिकली जाता है तो थोड़ा फास्ट होगा। विथ वाटर लेते हो तो डिपेंड करता है, राइट। अगर आपने अपने एनालिसिस किया है तो यू विल गेट द एक्चुअल कि अगर इस तरह से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, इस तरह से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, डिजोल्व होने में इतना टाइम लगेगा, राइट। वो आप एनालिसिस कर रहे हो, राइट। So you after end of the analysis you will have the actual data, and based on that
आप मटेरियल उसका सिलेक्ट कर पाओगे कि जो भी आउटर कवर है कि वो कितने टाइम में डिजोल्व होना चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द एग्जांपल कि आप एनालिसिस किस हद तक कर सकते हो यार। और नाउ डेज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ आप उसका एनालिसिस ना करो, या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आप उसके बेस्ड ऑन आप किसी को भी वारंटी गारंटी या आपकी प्रोडक्ट की श्योरिटी दे पाओगे कि हाँ आप इतना रफ एंड टफ यूज करो, उसको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? यू डिड एनालिसिस और यू नो दैट, राइट। सो कैन यू सर गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड? या सो दिस वन इज एनालिसिस, डिजाइन वैलिडेशन। आप उसको वैलिडाइज कर रहे हो कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। या सो दिस आर द सॉफ्टवेयर एनसिस एंड नास्ट्रॉन, राइट, कि जो वो एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, और उसका जो भी डाटा आता है ना, आप डायरेक्टली यूज करते हो, दे कैन गिव यू द एवरी डिटेल्स कि आपको कर्व चाहिए, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल साइकिल चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल की मेरा प्रोडक्ट है, राइट, तो उसमें नंबर ऑफ साइकिलिंग जो बोल रहे हैं ना कि फटीग लाइफ, राइट, पीरियड ऑफ साइकिल जो पे फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, तो उसकी लाइफ क्या है, कितने साइकिल के बाद उसका फेल्यूर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अपना पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंकशाफ्ट है, तो आपको मालूम है ईच एंड एवरी कंबशन वहां पे थ्रस्ट आ रहा है, बट वो साइक्लिक लोड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 साइकिल के बाद क्रैंकशाफ्ट पे लोड आया फिर 15 साइकिल, नो, इट्स साइकिल, एवरी साइकिल उस पे आ रहा है। सो आप उस पर फटीग एनालिसिस कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ इतनी लाख साइकिल के बाद इसका चांसेस है फेल्यूर होने का। यानी उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि इतने किलोमीटर तक चलेगा, तो आप बोल देते हैं ना कंपनी वाले कि इतने किलोमीटर्स या इतने ईयर्स आपका जो भी है वो प्रोडक्ट की वारंटी कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालिसिस किया है एंड देन, हाँ सी अल्टीमेटली वर्चुअल के हिसाब से अगर आप प्रोटोटाइप पे जाओगे, डेफिनेटली प्रोटोटाइप विल गिव यू द एक्चुअल डाटा। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लाइंड हूं, मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि मुझे कोई XYZ प्रोडक्ट बनानी है, राइट, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आपको मालूम है कि हाँ उसकी डिजाइन क्या थी, उसके मटेरियल कौन सा यूज होता था, आप मे बी वो मटेरियल चेंज करोगे। बट आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि मुझे मटेरियल कौन सा यूज करना है, मुझे डिजाइन किस तरह की करनी है, जस्ट टोटली ब्लाइंड हो। और आप जैसे फर्स्ट स्लाइड में था ना कि टोटली इनोवेटिव प्रोडक्ट, आप उस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया है कि मुझे ऐसा बनाना है, तो आप कंसेप्ट करोगे। अभी मैं फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ साइकिल को, कि गिविंग द एग्जाम्पल कि रिक्वायरमेंट फाइंड करोगे जो ऑलरेडी है। आप डिपेंड करता है कि आप टोटली न्यू है तो आप उस तरह के क्लाइंट पकड़ोगे और उसको बोलोगे कैसा होना चाहिए। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप उसका क्या करोगे, कंसेप्ट बनाओगे, ऐसा दिखेगा, उसका डायमेंशन ये रहेगा। देन में भी आप 3D मॉडल बनाओगे, उसको फिट करोगे, राइट। नाउ वो सब सही है, बट अब मुझे उसका मटेरियल कौन सा चूज करना है, या तो उसकी डिजाइन जो भी है वो सही है कि नहीं है। तो आप वो केस में आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल। सो एज आई सेड कि आप एनालिसिस में मटेरियल भी दे सकते हो। सो व्हाट आई विल डू, बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट आई विल मेक अ ग्रुप ऑफ मटेरियल के जो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो जो प्रोडक्ट है वो 100 न्यूटन मीटर का शॉक एब्जॉर्ब करना चाहिए या विस्टैंड करना चाहिए। तो मैं वो मटेरियल पहले फाइंड करूंगा कि वो उस कौन सा उतना मटेरियल के उसकी कैटेगरी वो है या मैकेनिकल प्रॉपर्टी वैसी है कि वो लोड को वो सस्टेन कर पाए या रेजिस्ट कर पाए। सो 10 मटेरियल मैंने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 5 मटेरियल जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो पांचों के पांचों में यूज करूं। सो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट को विथ मटेरियल 1 के साथ एनालिसिस करूंगा, मटेरियल 2 के साथ, मटेरियल 3 के साथ और मटेरियल 5 के साथ, राइट। सो उनमें से 2 मटेरियल ऐसे है कि जिसका कॉस्टिंग या जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी वो फुलफिल कर रहा है। दूसरे 3 मटेरियल जो है वो क्या, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट 100 करना चाहिए वो 500 कर रहा है। तो मेरा जो भी लोड है उससे 150 के ऊपर जाने ही नहीं वाला है, राइट।
तो वो टोटली मेरे लिए रिजेक्ट हो गए मटेरियल 3। अब 2 मटेरियल आइडेंटिफाई मैंने किए। अब वो दोनों में से मैं क्या देखूंगा कि डिजाइन वाइज किसी को एरोडायनेमिक शेप देना है तो उनमें से कौन फुलफिल कर रहा है, या जो भी एक्सवाइजेड रिक्वायरमेंट है उसमें से कौन, यानी कि आप ब्लाइंड थे वहां से टूवर्ड्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हो आप। सेम थिंग फॉर द डिजाइन, राइट। कि मुझे मेरी जो डिजाइन थी वो अब फुलफिल कर रही नहीं। पहले आपको एक डिजाइन बनाओगे उससे लग रहा है कि नहीं, उससे एरर और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। डिपेंड कि आप किस तरह का एनालिसिस करना चाहते हो। आप स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस कर सकते हो, आप एरोडायनेमिकली एनालिसिस कर सकते हो, आप थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, डिपेंड कि आपकी प्रोडक्ट की एंड एप्लीकेशन क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे एरोडायनेमिक्स तो डेफिनेटली बॉडी पे भी करेगा। तो जो भी मैंने शेप दिया है 3D मॉडल में डिजाइन किया है, अब उसमें मैं एरोडायनेमिकली उस पर टेस्ट करूंगा, राइट। सो अगर जो भी प्रोडक्ट है वो एरोडायनेमिकली फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसकी डिजाइन चेंज करूंगा, फिर उस पर इंपोर्ट करूंगा, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करूंगा, राइट। कब तक, जब तक मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। दैट मीन्स कि आपने मटेरियल वाइज आप ओके, बट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। जो आप पहले ब्लाइंड थे कि मुझे किस तरह का शेप बनाना है, या तो ये रिक्वायरमेंट में कौन सी डिजाइन है वो फिट होगी, राइट। ओके। सो आप वर्चुअली अगर आपको श्योर होते हो कि हाँ अब मुझे मालूम है कि मुझे यही मटेरियल यूज करना है और यही डिजाइन करिए, देन गो फॉर अ प्रोटोटाइप। क्योंकि वो उतने आपके नंबर ऑफ टाइम सेव करेगा, टाइमिंग सेव करेगा, और नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट किया आपने प्रोटोटाइप के लिए वो भी आपका सेव करेगा। मे बी विद इन 1 और 2 में आपका फाइनली हो जाएगा, राइट। सो थर्ड स्टेज इज, इसको एनालिसिस भी बोल रहे हो, और आपने शायद सुना होगा कैड कैम सीए। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, राइट। कैड उसमें कहां तक कवर होता है, कैड में नीड्स ऑफ कस्टमर, कंसेप्चुअल डिजाइन एंड 3D मॉडलिंग, ये जो 3 स्टेज है वो कैड में यूज होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि आप कोई डिजाइन बना रहे हो। देन सीए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग यानी कि एनालिसिस थिंग्स, जो आप किसी भी प्रोडक्ट को एनालिसिस कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, राइट। सो इट विल फॉल्स अंडर एनालिसिस स्टेज। सो कैड सीए, एक्चुअली बोला जाता है कैड कैम सीए, बट अभी हमने देखा कैड एंड सीए, राइट। ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने बोला कि यस डिजाइन मुझे पसंद है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके, जो भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल कर रहा है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग पे जाओगे, बट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग यू नीड समथिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को भी 3D ये बाइक दे दिया आपने, या 3D मॉडल दे दिया, प्रोटोटाइप, या तो वर्चुअली आपने दे दिया किसी को भी 3D और बोल रहे हो कि इसके 1000 पीस बना दो, will he able to make it? No, because he needs some more details. आपने XYZ पार्ट्स दिया है तो उसका डायमेंशन क्या है, राइट, कहां से होलो है, मशीनिंग कैसे करना है, राइट, क्वांटिटी उसकी कितनी लगेगी, वो स्क्रू चाहिए तो कितने नंबर ऑफ स्क्रू वहां पे लगेंगे, बोल्ट कितने नंबर ऑफ लगेंगे। सो ही नीड ईच एंड एवरी डिटेल्स, right. So it's called GD&T, geometrical dimension and tolerance. Also he need tolerances also. For example आपने tolerance दिया नहीं, अगर दो for example सिलेंडर लाइनर और पिस्टन, राइट, डेफिनेटली कांटेक्ट में रहती है रिंग, पिस्टन रिंग, बट उसके बीच का आपने क्लियरेंस दिया ही नहीं, टॉलरेंस दिया ही नहीं है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बाद में मालूम पड़ रहा है कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसके बीच में टॉलरेंस और क्लियरेंस है ही नहीं, राइट, या तो ज्यादा है तो वो ऐसे लैकिंग कर रहा है, राइट। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है। सो यू नीड डिटेल्स ड्राइंग, राइट। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, या, सो ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग, सो फॉर दैट GD&T, सर नेक्स्ट प्लीज। Yeah, so it's called GD&T, geometrical dimension. No, back please, back. Yeah, so GD&T, geometrical dimension and tolerance, उसको सभी डायमेंशन चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, राइट, जो भी आपका पार्ट है उसको, तो एज ए सेम थिंग जो ऑटोकैड में आप बना रहे तो वो चीज उसको वहां पे देना है विथ बॉम बिल ऑफ मटेरियल, कि उसमें ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका डायमेंशन ये है,
व्यू वाइज कट सेक्शन भी आपको देना पड़ेगा कि अगर उसको कट करेंगे तो कहाँ पे मटेरियल है, देन उसकी क्वांटिटी कितनी है, each and everything you need to provide them, right? So that one is the drafting and detailing. Next please. Now you will go for the manufacturing, right? But see, आपको मालूम है, आपने मे बी फर्स्ट ईयर में लेथ मशीन यूज किया है, राइट? सो उसके कुछ लिमिटेशन है. यू कांट मेक ऑल काइंड ऑफ शेप इन लेथ मशीन, राइट? कुछ कॉम्प्लेक्स शेप रहते हैं, राइट? जियोमेट्रिकल वाइज, एरोडायनेमिकली वाइज. सो आप हर चीज बना नहीं सकते हो उसमें, किसमें, लेथ मशीन पे. तो उसके लिए डिफरेंट भी सॉफ्टवेयर मशीन यूज होता है, जो है सीएनसी मशीन है, वीएमसी मशीन है. बट वीएमसी और सीएनसी आप मैन्युअली तो ऑपरेट नहीं करते हो जैसे लेथ मशीन यूज करते हो, राइट? वो ऑटोमेटिकली होता है. यू नीड टू गिव कोडिंग, जी कोड, एम कोड, राइट? तो अगेन फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वाई जेड यहाँ पे मेरे पास आया है जो मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट उसका कोडिंग करना जरूरी है. अगर मुझे वो पहले तो कोडिंग करना आना चाहिए, देन आई कैन डू द मैन्युफैक्चरिंग. अदरवाइज मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा जो एक्सपर्ट हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आ रहा है, या तो मुझे आ रहा है बट कोई एक एक्सवाइजेड टाइप ऑफ शेप थे, मुझे उसमें एक्सपर्टाइज है, ये मेरे लिए डिजाइन न्यू है. तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं क्या करूंगा, उसका कोडिंग बनाऊंगा, जी कोड. यानी कि मशीनिंग में जनरली क्या होता है, आप कोड मशीनिंग फीडिंग देता है, कोड फीड करता है कि भाई जो भी कटिंग टूल्स है ये लेयर पे इतने एक्स में, इतने वाई में, फिर कटिंग करे, फिर नेक्स्ट कट जाए, फिर नेक्स्ट जेड में, फिर वैसे वो कोडिंग देता है. तो उसके हिसाब से मशीन कटिंग कर रहा है, राइट? सो फॉर दैट यू नीड कोडिंग. सो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैं कोई कोडिंग बनाया, कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट का, बट मुझे मालूम ही नहीं है कि वो कोडिंग सही हुआ है कि नहीं. कब तक मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक मैं उसको एक्चुअली मशीनिंग ना करूं. तो वो कोड जो बनाए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा मशीन है सीएनसी या वीएमसी, उस पर ट्रांसफर करूंगा एंड कमांड दूंगा स्टार्ट. मशीन क्या करेगा, कटिंग स्टार्ट करेगा उसका. मशीनिंग जो आप लेथ में करते थे वह सेम वैसा यहाँ पे करेगा. नाउ आफ्टर कुछ टाइम आपको लग रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर कट नहीं हो रहा है, या तो रॉन्ग कट हो रहा है, दैट मीन्स कि मैंने वहां पे कोडिंग गलत लिखा है. सो अगेन आप क्या करोगे, रिकोडिंग करोगे, राइट? अगेन उसको टाइम जाएगा, वहां पे मटेरियल वेस्टेज हुआ. कब तक करोगे, जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज जो आपने डिजाइन किया वैसा नहीं दिखे. तो अगेन सोचो यहाँ पे कितना टाइम जा रहा है, मटेरियल वेस्टेज कितना जा रहा है. और मुझे आता था, बट अगर मैं न्यू ही हूँ तो मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मैं हायर कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी काम है, 1 महीने के बाद मैं फ्री हूँ, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे तो कोडिंग आता नहीं है, किसी को आता है वो मेरे लिए फ्री नहीं है, राइट? सो ये जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए है, जो है मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, जो कैम में फॉलो होते हैं, कैड, कैम, सीए. अभी मैं जो एक्चुअल बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. सो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इट्स फॉल्स अंडर कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. सो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो 3D मॉडलिंग में आपने कोई भी पार्ट बनाया है उसको डायरेक्टली आप ये प्लेटफॉर्म पे इंपोर्ट कर सकते हो. कौन से, जो मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर पे, उस पे. देन आप वहां पे सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा मशीन यूज करना है, आपको कितने एक्सिस का मशीन यूज करना है. सपोज सीएनसी करना है, ओके, उसकी बेड साइज कहाँ पे है वो कर सकते हो आप, उसका टूल है वो कितने डाया का है आप वो कर सकते हो. ईच एंड एवरीथिंग आपको टिक मार्क करना रहेगा, वो सॉफ्टवेयर ही आपको स्टेप बाय स्टेप आ जाता है उसमें. आपने किया, राइट? फिर आपको सिलेक्ट करना रहता है कि उसको जिगजैग मैनर में करना है कटिंग, या सिलिंड्रिकल मिलिंग करना है कटिंग, जो भी. फिर फिक्सचर, कि आपको भी मालूम है कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसको, वो जो कोई भी एक्सवाइजेड मशीन यूज कर रहे हो उसके प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए कुछ फिक्सर चाहिए जो फिक्स करके रखे, वरना तो ऐसे ही घूमेगा टूल्स के साथ ऑब्जेक्ट, राइट? तो वो फिक्सर भी आप दे सकते हो यहाँ पे कि फिक्सर कहाँ पे है, राइट? सो उसको वहां पे वो टूल कंसिडर नहीं करेगा. देन आपने जो भी टिक मार्क कर दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसको मे भी आपको 1 वीक या 1 मंथ लगता था कोडिंग के लिए, यहाँ पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिनट सॉफ्टवेयर आपको कोडिंग जनरेट करके देगा. आपको जस्ट पार्ट को इंपोर्ट करना है, जो भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल करना है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिनट में कोडिंग जनरेट कर देगा. वो आपको डायरेक्टली
ट्रांसफर करना है मशीन में। इवन सॉफ्टवेयर आपको एनिमेशन भी दिखाएगा कि अगर आपने इस तरह से रखा है तो वो टूल्स कैसे कट करेगा एंड देन आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे वर्चुअली आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट कटिंग करने से पहले भी कैसा होगा, उसमें कैसे कटिंग होगा, क्योंकि आपने वो जिगजैग मैनर से कटिंग दिया है या तो सर्कुलर दिया है, डिपेंड कि कितने एमएम का थिकनेस दिया है, राइट। सो जस्ट सोचो आप कि वहां पे 1 मंथ जितना या 1 वीक लग रहा था, यहाँ पे विद इन कुछ 5 सेकंड या 1 मिनट में, डिपेंड आपका प्रोसेसर टाइम, प्रोसेसर कितना है पीसी का, राइट। सो दूसरा थिंग्स, किसी पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, आपको नहीं आता है कोडिंग, इट्स ओके, जनरल नॉलेज भी है, इट्स ओके, आप इंपोर्ट करो, सॉफ्टवेयर विल डू योर बिहाफ ऑफ वर्क, राइट। प्लस आपको एनिमेशन भी दिखा रहा है कि कैसे कटिंग होगा। सो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एनएक्स कैम, राइट। सीमेंस का प्रोडक्ट है जो एनएक्स कैड है, वैसे ही उनका है एनएक्स नास्ट्रॉन, एनएक्स कैड एंड एनएक्स कैम, ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ सीमेंस, राइट। और दूसरे भी मास्टर कैम आता है, कैम वन, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, बट हियर आई टुक द एग्जांपल व्हिच इज क्वाइट फेमस, राइट। सो बेनिफिट इज अभी जस्ट स्टार्ट्स एंड देन सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, देन यस आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देन इट विल गो टू द मार्केट। नाउ अगेन ये साइकिल तो कंटिन्यू रहेगी, आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मोबाइल बनाया होगा या फर्स्ट व्हीकल बनाया होगा, वो भी ये प्रोडक्ट से गया होगा, पास हुआ होगा, राइट। सो डेफिनेटली अब डिपेंड, तो वो टाइम पे अगर उनके पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं थे तो वो भी, वो फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल के लिए ड्राफ्टिंग से गए होंगे, 3D मॉडलिंग के लिए प्रोटोटाइप से गए होंगे, एनालिसिस के लिए फिजिकली एनालिसिस किया होगा उसने, देन जीडीएनटी अगेन ऑटोकेड की तरफ ड्राफ्टिंग किया होगा, एंड देन जो भी आपका मशीनिंग है उसके हिसाब से गए होंगे। अगर नाउअडेज कंपनी के पास उतना टाइम भी नहीं है और कतनी कंपनी के पास बजट भी नहीं है कि उतना टाइम वेट कर सकते और उतना एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सके, सो नाउअडेज मोस्ट ऑफली कंपनी यही फॉलो करते सॉफ्टवेयर बेस्ड, क्यों, क्योंकि वो फिजिकल है, सुटेबल है, राइट। नाउ अगेन आपका प्रोडक्ट फाइनल फिनिश हो गया, अभी मार्केट में जा रहा है। सो जस्ट लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट मोबाइल या फर्स्ट वॉशिंग मशीन या फर्स्ट जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में गया होगा फर्स्ट टाइम, तो ऐसा जरूर नहीं कि अभी तक वही डिजाइन चल रहा है, नहीं, उसमें भी कुछ कस्टमर बोलेगा कि नहीं ये डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही, या तो मुझे कुछ नया ऐसा चाहिए, तो अगेन क्या हो, एज ए क्या आएगा, वो वहां पे एज ए कस्टमर नीड आएगा, राइट। मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो चुका है, बट अगेन वहां से कुछ रिक्वायरमेंट्स आएगी, देन अगेन आप उसका क्या करोगे, कंसेप्ट बनाओगे, देन अगर उसका प्रोटोटाइपिंग करोगे, सॉरी अगर ऑप्शन नहीं है तो या तो आप मॉडलिंग करोगे, राइट, देन अगेन एनालिसिस करोगे, देन सेम साइकिल फॉलो करोगे और अगेन आप आपका जो प्रोडक्ट है वो नया मार्केट में लॉन्च करोगे, राइट। ऐसा नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कार और जो भी व्हीकल है वो नाउअडेज, अब जस्ट सोचो, I'll just give you the example what are the most benefit of this software. Just you can think that 20 year back कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से हो, कहीं से भी एक प्रोडक्ट आने के बाद उसको कितना नया मॉडल आने में, लॉन्च होने में कितना टाइम लगता था, या एक कार लॉन्च करने के बाद सेम मॉडल कितने साल के बाद लॉन्च होता था, क्यों, क्योंकि वो ओल्ड जो मेथड है ड्राफ्टिंग करना, प्रोटोटाइपिंग करना, वो मेथड से फॉलो कर रहे थे, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग था वहां पे, तो प्रोडक्ट को भी डेवलप होने में टाइम लग रहा था। बट नाउअडेज यू कैन जस्ट थिंक विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर, राइट, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर थिंग्स। Nowadays most of the company are using the software, so they can do work fast, so definitely they can launch them product fast, right. So this is the product design cycle कि कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट कर बनाना है या डेवलप करना है, सो ये स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आप आपके प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो या चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई कंपनी को ज्वाइन करो, सो उसके लिए आपको कोई कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाना हो, बट दिस आर द स्टेजेस which you must have to follow it, okay. Sir next slide please.
So I'm just finishing my presentation. If you have any question or query, you can ask, sir. Hello. 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 Yes, sir. Am I audible? Yeah. Okay, sir. So, only one or two questions from the student side. Okay. One student is asking that uh, if we are doing diploma right now, Okay. okay, so what is the future in designing? If I have to make the future in designing, Okay. so what is the roadmap? ओके सी एज आई सेड कि अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है राइट सो जस्ट थिंक कंपनी क्या कर रही है फर्स्ट थिंग्स एज आई सेड कि पहले वर्चुअली मीन्स होता था वर्चुअली नहीं होता था प्रोटोटाइपिंग ऐसे करे बट नाउअडेज अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ राइट जो भी मेरा टेक्निकल स्किल है डेफिनेटली वो काम में आने ही वाला है बट वो स्किल कंपनी यूज कर रही है अभी इफ इट इज यस देन आप उसमें शार्प बनाओ क्यों क्योंकि आपके भी कॉम्पिटिटर है जो आपके बैचमेट है या दूसरी कॉलेज है तो वो ही उसमें ही जो आपका एजुकेशन लेवल ही सिर्फ सफिशियंट है या कंपनी उस पर ही वर्क कर रही है देन उसको साफ करो नहीं है तो जैसे इस तरह की कोई भी टूल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो ट्राई टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर फर्स्ट क्यों अगर आपको आ नहीं रहा है और कंपनी वो यूज कर रही है तो डेफिनेटली वो उसको ढूंढेगी ना कि जिसको आ रहा हो राइट सो डिजाइनिंग में जाना है तो यस डेफिनेटली जो आप पढ़ रहे हो डिजाइन्स के जो भी फॉर्मूलाज वो डेफिनेटली काम आने वाले हैं अभी आप ये स्टेज पे सोचोगे कि इट वाज जस्ट थियरी नो यस थियरी है बट वो डेफिनेटली काम आने वाली है आपको तो उसको भी तो शार्प करो जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको तो आप अच्छे से शार्प करो बट साइड वाइज इस तरह की भी स्किल करो कि जो जिस फील्ड में आपको जाना है राइट नाउअडेज हर फील्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट इजी टूल्स है सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर वर्क ऑफ एरिया कि आपको किस फील्ड में काम करना है यस मुझे डिजाइनिंग में काम करना है इट्स ओके तो डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको राइट ट्राई टू लर्न दैट ओके Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज Sir, one of the वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू o- एक्सटेंड कि okay, आप okay, जो भी कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो जस्ट उसको बेसिक से मत करो राइट ट्राई टू लर्न प्रॉपरली क्यों कंपनी में बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको थोड़ा आता है आ जाओ नो मे आई एम वर्किंग ऑन दिस लेवल इफ यू नो दैट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू आर मोस्ट वेलकम because I have seen even during my bachelor things or diploma I also write same thing अगर you know that AutoCAD एक प्रैक्टिकल आता है हमको राइट कब जब ग्राफिक इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम करते हैं तो इट डजेंट मीन कि आपको AutoCAD आ गया है जस्ट डेफिनेटली कॉलेज की भी कुछ लिमिटेशन रहती है तो उस टाइम पे थोड़ा करवा सकते हैं पूरा नहीं करवा सकते हैं राइट क्योंकि उनको एकेडमी भी देखना रहता है सो आपको थोड़ा आता है तो वहां पे लिखोगे मुझे इतना ही आता है फॉर एग्जाम्पल ऑटोकेड आ रहा है तो मुझे कुछ कमांड आता है तो जस्ट लिखो कि बेसिक राइट क्योंकि अगर ऑटोकेड लिख रहे हो कंपनी विल कंसीडर कि आपको अच्छे से आता है देन इंटरव्यू में या प्रैक्टिकल वो देगी आपको तो नहीं कर पाओगे तो आपका ही लॉस है तो जितना भी आता है उसके हिसाब से लिखो या ट्राई टू लर्न प्रॉपरली प्रोफेशनली सो आप प्रोफेशनली काम भी कर पाओ उस पर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज okay, sir. So one of the student is asking that is any other design course is available after this diploma, Bachelor of Designing in particularly the automotive applications or यस anything? यस सी कैड सेंटर में हम लोग इस तरह का करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल बताया ना
तो किसी में डिप्लोमा इन प्रोडक्ट डिजाइन है, सिर्फ उसमें मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होगा। डिप्लोमा इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड एनालिसिस है, तो जिसमें डिजाइन भी कवर होगा, एनालिसिस भी कवर होगा। या तो मास्टर डिप्लोमा है, पूरा प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल कवर होगा उसमें, कि आपको फर्स्ट से लेके ऑल, सो हर स्टेज पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट डिजाइन का आता है तो आप मॉडलिंग पे काम कर पाओगे, डिजाइन एंड एनालिसिस आता है तो आप मॉडलिंग भी कर पाओगे, एनालिसिस भी कर पाओगे। सब आता है तो आप डिजाइनिंग थिंग वर्क कर पाओगे, एनालिसिस भी कर पाओगे और मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाओगे। सो डिपेंड, बट एज ए डिप्लोमा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिप्लोमा तक आप डिजाइन तक ही जाओ, डोंट गो फॉर द एनालिसिस। क्यों? क्योंकि कंपनी डिप्लोमा वाले को डायरेक्टली एनालिसिस करने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत है, राइट। सो उसके लिए आपका बैकग्राउंड भी चाहिए, कि शायद डिप्लोमा से ज्यादा बैचलर मांगे या मास्टर भी मांग सकती है, राइट। सो एज ए डिप्लोमा साइड वाइज आपका डिप्लोमा चल रहा है और साइड वाइज ऑल्सो यू कैन लर्न। इसका जरूरी नहीं है कि आप एंड तक वेट करो कि आफ्टर डिप्लोमा आप यू विल स्टार्ट, नहीं। अगर आप जस्ट सोचो कि ड्यूरिंग डिप्लोमा अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट सेम से भी आपने स्टार्ट कर दिया या सेकंड ईयर से ही कर दिया, तो विद इन थर्ड ईयर आपको सॉफ्टवेयर आएंगे। अब प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है और वो बोल रही है मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए या उसा ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको ये आता हो, सो यू विल बी रेडी फॉर दैट। आप बोल सकते हो हाँ आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे ये आता है, सो इट विल बी इजी फॉर देम ऑल्सो हायर। और आपके लिए भी एक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आपके मे भी एकेडमी थोड़ा प्लस माइनस होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट टूल्स जो कंपनी में यूज हो रहा है उसकी वजह से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। सो ऐसा यस हम लोग करवाते हैं उस तरह के। आफ्टर डिप्लोमा भी यू कैन लर्न और साइड वाइज भी ऑल्सो यू कैन लर्न सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और इवन आप आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रहेगा ना, उसमें भी आप ये सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज कर सकते हो फॉर योर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, sir. So there are no questions. So just we are ending this session, and once again, thank you so much, sir, Vijay sir, for your valuable time and for your proper guidance and the informative such an informative session for the students regarding the field of designing. So once again, thank you so much, sir. And Vijay sir. yeah, thank you very much, all of you, for listening. And one more thing, see, because of time concern, I'm not able to give you all the information in such a detailed way. Or see, because of the limitation, I didn't add more slide also. So if any one of you have any question or query regarding this, see, I also did diploma, degree, and master in automobile, right? So I belongs to your field. If you have any doubt or futurist things, here is my mobile number. You can contact me for the further information regarding further studies or also in the same field like designing software things. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah, thank you all of you.